ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ میں نے سرد آہ بھری، آپ جانتے ہیں وہ کتنی ضدی ہے، بہتر ہے یہ کام تم کر لو۔ یکلختون کے لہجے میں سرد مہری آ گئی تھی۔ مجھے کب تک جانا ہوگا؟ اسی ہفتے کے دوران میں سارے انتظامات کر دوں گا۔ مہاپارا اور حسن علی وہ بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ ایبٹ آباد میں میرا ایک بنگلہ ہے، تم وہیں ٹھہرو گے۔ میں نے کسی قدر سکون کا سانس لیا کہ مجھے مہاپارا سے جدا نہیں ہونا پڑے گا، لیکن کاجل میرے دل میں کانٹا سے چپکایا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ جمشید علی کا یہ فیصلہ میری اور کاجل کے لیے بہتر تھا۔ ایک دوسرے کا ہونے کے لیے ہمارے پاس ساری عمر پڑی تھی۔ ابھی ہمیں تعلیم حاصل کرنا تھی، اپنی شخصیت بنانا تھی، اس دنیا میں جینے کے لیے بہت کچھ سیکھنا تھا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ جمشید علی نے کتنی مہارت اور سیاست سے مجھے اور کاجل کو الگ کر دیا تھا۔ ہم ریلوے لائن کی پٹڑیاں بن کر رہ گئے تھے، جو ساتھ ساتھ تو چل سکتی ہیں لیکن مل نہیں سکتی۔ میں نے مہاپارا کو آگاہ کیا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ لیکن کیوں اتنا اچانک فیصلہ؟ پاپا کے سارے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں، میں نے ان سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ یوسف میری طرف دیکھو، تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو؟ مجبوراً مجھے بتانا پڑا کہ جمشید علی کے اس فیصلے کی اصل وجہ کیا تھی۔ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، لیکن میں ان سے جھوٹ بھی نہیں بول سکتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ناراض ہو جائیں گی، لیکن خلاف تو اکا وہ ہنس دی۔ یوسف تو بڑا ہو گیا ہے، میں اور چھپ گیا، لیکن کاجل ابھی بچی ہے۔ انہوں نے وہی بات کی اور فوراً ہی اس کی تردید کر دی۔ باقی لڑکیاں معاملات محبت میں جلد سمجھدار ہو جاتی ہیں، میں نے کہا۔ آپ بھی لڑکی ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا۔ بکو مت، وہ چھینپ گئی، میں اب لڑکی نہیں رہی۔ کون کہتا ہے؟ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ یقین کریں آپ اب بھی 22-24 برس سے زیادہ کی نہیں لگتی، بلکہ پونی باندھ کر تو آپ کالج کر لگتی ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو حسن علی سے پوچھ لیجئے۔ یوسف اب تم مجھ سے مار کھاؤ گے، انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بسم اللہ کیجئے، یقین کرے بہت دنوں سے یہ پسندیدہ ڈش نہیں کھائی۔ اب تم بڑے ہو گئے اور بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ویسے آپ نے بچے پالنے کی اچھی پریکٹس کر لی ہے، میں شرارت سے بولا تو وہ چلا کر سچ مچ مجھے مارنے لگی۔ اس لیے میں حسن علی وہاں گیا۔ مہاپارا کو میرے اتنے پاس دیکھ کر اس کے چہرے پر سخت تاثرات ابھر آئے تھے۔ مجھے جس کونسل کے سامنے پیش کیا گیا تھا وہ 3 افراد پر مشتمل تھی۔ ایک عمر رسیدہ تھا، باقی 2 نسبتاً جوان تھے، تینوں سفید فام ہی تھے۔ عمر رسیدہ نمبر 1 تھا اور باقی 2 اور 3 تھے۔ نمبر دینے کا مقصد ان کی شناخت چھپانا تھا۔ ان کے پتھر کی طرح ساکت چہرے دیکھ کر مجھے شبہ ہونے لگا کہ انہوں نے ماسک میک اپ کر رکھا تھا۔ جان گرے پر حملہ کرنے کی پاداش میں مجھے اور عبید صلاح کو 3 دن کھانے اور پانی سے محروم رکھا گیا تھا۔ کھانے کی تو اتنی فکر نہیں تھی، لیکن سمندر کے نم آب و ہوا کے باوجود پانی کی کمی نے ہمارے جسموں سے جان نکال لی تھی۔ کم از کم اپنے بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ اگر مجھے چند گھنٹے اور پانی نہ ملتا تو میں دنیا سے گزر جاتا۔ پہلے مرحلے میں ہمارا کھانا پانی بحال کیا گیا، کہیں 1 ہفتے بعد جا کر ہماری حالت سنبھلی تھی۔ بھوک پیاس کے لرزا دینے والے احساسات کی یہ یادیں ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رہیں گی۔ یہ 10واں دن تھا جب صبح ناشتے کے بعد ہمیں باہر نکالا گیا۔ ہمیں لچکدار ہتھ کڑیاں پہنا کر ایک بند گاڑی میں کہیں لے جایا گیا۔ جہاں سے ہم باہر نکلے وہاں سرخ پتھروں سے بنی وسیع و عریض عمارت تھی، جیسے کہ سٹی کورٹس کی عمارتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہاں ہم پر مقدمہ چلایا جائے گا اور جرم ثابت ہونے پر ہمیں سزا دی جائے گی۔ کیا ستم ظریفی تھی! کچھ بین الاقوامی قسم کے مجرم الٹا ہمیں ہی مجرم قرار دے کر مقدمہ چلا کر سزا دینے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اندر سے عمارت ایسی ہی تھی جیسا کہ عام سرکاری دفاتر کی ہوتی ہیں، اور وہاں کچھ لوگ کام بھی کرتے نظر آ رہے تھے جیسے کہ سرکاری اداروں میں کرتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک دھوکہ تھا، ورنہ ان کے مقاصد میں اور کسی مملکت کے سرکاری دفاتر کے عملے میں وہی فرق تھا جو کسی ملک کی پولیس اور مجرموں کے درمیان ہوتا ہے۔ ہمیں لانے والے گارڈز پولیس جیسی ہی وردی میں تھے، لیکن اس سے ان کی اصلیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
मुजरिम कानून की वर्दी पहनकर सचमुच कानून का मुहाफिज नहीं बन जाता। अमारत के वेटिंग रूम में हमें जानकारी मिला था। अब तुम लोगों पर हमारे कवानीन के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा, उसने कहा। इस पर उबैद सलाह ने उसे आगाह किया कि अगर उसे इनके कवानीन का मुसवदा मिल जाए तो इस पर आबपाशी करना पसंद करेगा। बहुत बकवास कर रहे हो, जानगरे ने काटदार लहजे में कहा। सारी बकवास बंद हो जाएगी। बकवास की तो कोई बात नहीं है, उबैद सलाह ने खुशदिली से कहा। उसकी बात अधूरी रह गई। एक गार्ड ने उसकी पसलियों में अपनी राइफल की नाली मारी थी। अपना मुंह बंद रखो, उसने गुर्रा कर कहा। कौंसल के सामने ये रवैया रखा तो अपनी बचत के रास्ते खुद बंद कर लोगे, जानगरे ने खबरदार किया। तुम्हारी कौंसल की ऐसी की तैसी, उबैद सलाह ने बमुश्किल कहा। मैं इस पर पेशाब करना पसंद करूंगा। गार्ड ने फिर नाल उसको मारनी चाहिए, लेकिन मैंने नाल को हाथ से पकड़ लिया। जुबान का जवाब हाथ से देना अच्छी बात नहीं है। एकदम बकिया गार्ड ने मुझ पर राइफलें तान ली और मैंने मुस्कुराते हुए राइफल की नाल छोड़ दी। गार्ड ने इस पर मुझ पर वार करने के लिए राइफल उठाई थी कि जानगरे ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। यूसुफ, मेरा मशवरा है, अपना दिमाग ठंडा रखो, तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए हो। अपना मशवरा अपने पास रखो, मैंने रुखाई से जवाब दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि इन हालात में अपना दिमाग ठंडा रखना ही बेहतर था। जेल में हंगामा करके मैंने खास तौर से डियरडान को अपना दुश्मन बना लिया था, जो बेहद मुतासब और कीना परवर शख्स था। मुतासब और कीना परवर तो जानगरे भी था, लेकिन वो अपनी किसी मसलहत की वजह से मुझे छूट देने पर मजबूर था। वरना जो शख्स जरा सी लड़ाई की वजह से बिला दुरेग 30 बेगुनाह अफराद को मौत के घाट उतार दे, इस रायत की तवक्का करना किसी बैल से दूध की तवक्का करने के मुतरादिफ था। 12 बजे हमें कौंसल के सामने बारियाबी का शर्फ हासिल हुआ। इसके 3 अरकान जज बने मुअज्जज नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे उनके चेहरों पर कजाकी की छाप वाज़े तौर पर नजर आ रही थी। उबैद सलाह ने अंदर जाते ही ऐलान किया, मैं इस नाम निहाद अदालत को नहीं मानता। तुम लोगों का जो दिल चाहे करो, मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगा। फजूल बातें मत करो मिस्टर उबैद सलाह, तुम पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात हैं। उबैद सलाह ने हकारत से उन्हें देखा। अब दहशतगर्द दूसरों को दहशतगर्द करार देंगे? इसे बाहर ले जाओ, इसका मुकदमा बाद में पेश किया जाएगा, नंबर 1 की तख्ती वाले ने गार्ड से कहा। इसके हुक्म की फौरी तामील की गई थी। उबैद सलाह के जाने के बाद मुझे इनके सामने एक कटहरे नुमा जगह खड़ा कर दिया गया। मेरे एक में गार्ड राइफल ही मुस्तैद खड़ा था। नंबर 1 ने अपनी ऐनक के ऊपर से मुझे देखा। मिस्टर यूसुफ अली, उसने कहा, तुम पर संगीन जराइम के इल्जामात हैं। पहले तुमने जजीरे की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मिस्टर जानगरे पर हमला किया और उन्हें यरगमाल बनाने की कोशिश की। तुम्हारा ये अमल एक मुजरिम और सजा याफ्ता दहशतगर्द की हमायत में था, जो बजाय खुद संगीन जुर्म है। फिर दौराने हिरासत तुमने असलहा रखा और इस असलहे से मिस्टर जानगरे को जान से मारने की कोशिश की। खुशकिस्मती से वो महफूज रहे, लेकिन इससे तुम्हारे जुर्म की संगीनी कम नहीं हुई। तुम अपनी सफाई में क्या कहना पसंद करोगे? कुछ नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा, सिवाय इसके कि तुम ये अदालत का ढकोसला खत्म करके हमारे खिलाफ जो तुम्हारा प्रोग्राम है इस पर अमल करो। लगता है मिस्टर यूसुफ, तुम्हें सजा से बचने से कोई खासी दिलचस्पी नहीं है, नंबर 3 बोला। मिस्टर यूसुफ को यकीन है कि इनसे संगीन जराइम सरजद हुए हैं, नंबर 2 बोला। इस बिना पर ये इंसाफ के अमल में शिरकत करने के बजाय इसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं हंसा, तुम लोग इंसाफ और अदालत की ABC से भी वाकिफ नहीं हो। अगर तुम लोग इंसाफ करना जानते तो दुनिया इस हाल में ना होती। बहरहाल बैनुल-अक़वामी सियासत से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी ज़ात से भी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस हद तक है कि मैं तुम्हारी दी हुई सज़ा से बचने की हर मुमकिन कोशिश जरूर करूंगा। हम सज़ा देने का इख्तियार और उस पर अमल दरामद करने की ताकत रखते हैं। कोया माइट इज राइट, मैंने हाथ फैलाते हुए कहा। जब तुम लोग इस असूल पर यकीन रखते हो तो ये अदालत का ड्रामा करने की क्या जरूरत है? हम इंसानी हकूक का एहतराम करने वाले लोग हैं, नंबर 1 ने पुरवकार लहजे में डटाई से कहा। हम किसी भी ऐसे काम से गुरेज करते हैं जिससे इंसानी हकूक पर जर पड़े। इस वजह से तुम जैसे मुजरिमों पर अदालत में मुकदमा चला रहे हैं। इंसानी हकूक का जितना एहतराम तुम लोग करते हो, इसे दुनिया के बहुत सारे इलाकों के लोग ताउम्र याद रखेंगे, मैंने मानी के इस लहजे में कहा। बैनुल-अक़वामी सियासत पर बात करने के बजाय बेहतर होगा कि तुम अपनी सफाई पेश करो, नंबर 3 ने फिर कहा। मैं अपनी सफाई में क्या कह सकता हूँ, सिवाय इसके कि मुझे कुछ कज़ाकों ने मेरी बहरी जहाज से अगवा किया। इन्होंने बम से जहाज को उड़ा दिया और 30 बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया। मुझे हक हासिल है कि इन कज़ाकों की कैद से रिहाई हासिल करने के लिए जो भी मुमकिन है कर गुजरूं, और मैंने यही किया। इस जजीरे के अपने कवानीन है, अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो तुम कौंसल के रूबरू आ सकते थे। मैंने महसूस किया कि अगर यह सूरत हाल कुछ और देर जारी रही तो मैं अपना सब्र खो बैठूंगा। इनकी डटाई काबिल तारीफ थी, लिहाजा मैंने खामोशी इख्तियार की। इसके बाद वो अपने तौर पर बोलते रहे, लेकिन मैंने एक लफ्ज नहीं कहा। तंग आकर नंबर 1 ने कहा,
मिस्टर यूसुफ, तुम्हें 1 दिन की मोहलत दी जाती है। अगर तुमने कल तक अपनी सफाई पेश ना की तो तुम लोग मुझे तयशुदा सजा सुना दोगे। मैंने उसकी बात काटी। इसे ले जाओ, नंबर 2 ने तय से कहा और गार्ड से मुझे बाहर ले आए। उबैद सलाह बाहर मौजूद था। उसे मुहाफिज ले जाने लगे तो मैंने उससे कहा, इन लोगों की बकवास खामोशी से सुनते रहना। ये अपनी मनपसंद सजा सुनाना चाहते हैं। तुमने बहस की तो सजा अभी सुना दी जाएगी, वरना 1-2 दिन की मोहलत मिल जाएगी। मैंने उर्दू में कहा था, इसलिए कोई और नहीं समझ सका। इसके बाद गार्ड्स उसे खींचते हुए ले गए। मैं बाहर रखी बेंच पर बैठ गया था। इस समय जॉन ग्रे नमूदार हुआ। वो मुझसे जरा फासले पर बैठ गया। वो खासा डरा हुआ था। 2 मरतबा किस्मत ने उसे मेरे हाथों से बचा लिया था। वो तीसरा मौका देने के मूड में नहीं था। इसके आते ही गार्ड्स भी मेरी तरफ से चौकन्ना हो गए थे। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब जॉन ग्रे ने उर्दू में कहा, यूसुफ, मैं तुम्हें इस मुश्किल से निकाल सकता हूँ। उसका लबा लहजा और अल्फाज की साख्त बिगड़ी हुई थी। तुम उर्दू जानते हो? थोड़ी बहुत, उसने मुस्कुरा कर कहा। यूएई में एक पाकिस्तानी सुपरवाइजर खासे अरसे से मेरे साथ रहा था। उसे ये जुबान सिखाई थी। इस जुबान में दुनिया की मौसीकी का सबसे अजीम जखीरा है। मैंने उसे हैरत से देखा। इस जैसे शख्स के मुंह से मौसीकी का सुनकर मुझे ताज्जुब ही हुआ था। तुम्हें हमारे म्यूजिक से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मौसीकी सारी दुनिया की मलकियत होती है। तुम लोगों ने सारी दुनिया को अपनी मलकियत समझ लिया है। मैंने तंज किया। तुम मौजू से हट रहे हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। नवाजिश होगी जनाब की, मैंने उसी लहजे में कहा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम न सिर्फ यहां से रिहाई पालोगे, बल्कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगा जिससे तुम आज तक बेखबर हो। कैसे हकायक? मैंने तड़प कर कहा। उसने मेरी दुखती रग पर उंगली रखी थी। तुम्हारे पस मंजर के बारे में, तुम कौन हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारे माँ बाप कौन थे, और मुझे तो ये भी मालूम है कि इनके कातिल कौन थे। मेरा जिस्म कांपने लगा था। बकवास करते हो तुम। यूसुफ, एक मासूम बच्चा बैक वक्त अपने माँ बाप से कैसे महरूम हो सकता है? क्या कभी जमशेद अली ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे माँ बाप कौन थे? नहीं, वो सारी उम्र तुम्हें बहलाता रहा होगा। तुम ये सब कैसे जानते हो? अल्फाज मेरे मुंह में टूट रहे थे। तुम सब जान जाओगे बशर्ते कि तुम मेरे लिए काम करने पर आमादा हो जाओ। काम की नौइयत क्या है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ना सिर्फ तुम यहाँ से छुटकारा पालोगे बल्कि एक बड़ी रकम भी हासिल कर सकते हो। कितनी बड़ी रकम? अगर मैं जानगरी को बता देता कि मैं अब भी इस कारोबार का कानूनी मालिक हूँ जो सालाना करोड़ों डॉलर्स का नफा कमा रहा था, तो शायद वो मुझे ऐसी पेशकश न करता। इसके नज़दीक यह बड़ी रकम थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। यह और बात है कि मैंने करोड़ों डॉलर्स के इस कारोबार से कभी अमली वास्ता नहीं रखा था। ये अली मैरीन लाइन कॉरपोरेशन थी, जिसका कारोबार दुनिया के 54 बड़े ममालिक में फैला हुआ था। मैरीन लाइन की दुनिया में ये एक मोतबर नाम था। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में था और आजकल इसके ज़ाहिरी मालिक जावेद और जुनेद थे, काजल के भाई ज़हरा बेगम और जुनेद अली के हकीकी बेटे। ये रकम ज्यादा भी हो सकती है। जानगरे ने गोया तरगीब थी। इसके अलावा तुम अपने खानदान से वाकिफ हो जाओगे तो इसका भी तुम्हें माली फायदा होगा। जानगरे इस तहजीब का नुमाइंदा था जिसके नज़दीक महज मादी मफादात ही अहम रह गए थे। मुझे उसकी ज़हनियत पर कोई ताज्जुब नहीं हुआ था। मैं जानगरे पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल गवाही दे रहा था कि इसकी बात में कहीं न कहीं सच्चाई ज़रूर थी। इसे आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं था। फिर वो मुझे इस जंजाल से भी निकाल सकता था जिसमें पंसाने वाला भी वही था। ओके, मैंने गहरी सांस ली। लेकिन सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उबैद सलाह को भी तुम बचाओगे। ये ज़रा मुश्किल काम है। वो मुतफक्किर हो गया। जैसे भी करो ये काम भी होना चाहिए। इसे तुम मेरी शर्त भी समझ सकते हो। मैं कर लूँगा, उसने कहा। अब काम के बारे में बात हो जाए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एकदम वो मोहतात नजर आने लगा। गालबन जब हमें ये नाम निहाद अदालत सजा सुनाकर फायरिंग स्क्वाड के सामने पेश कर देगी तब, या हमें तफरीह तबाह का निशाना बनाकर रिंग में छोड़ दिया जाएगा तब। एतमाद रखो मुझ पर, ऐसा नहीं होगा यूसुफ। मैं इस शख्स पर कैसे एतबार कर सकता हूँ जिसे मुझ पर एतबार नहीं? हाँ, हम दोनों मजबूर हैं। तुमने दुरुस्त कहा, लेकिन तुम ज्यादा मजबूर हो। तुम्हारे लिए जान बचाने का सवाल भी है और इसे सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। तुम खुदाई कामों में दखल देने का दावा कर रहे हो। जानगरे, मैंने मुलामत भरे लहजे में कहा। खुदा ने बहुत कुछ हम पर छोड़ दिया है, उसने डटाई से कहा। फिर उठते हुए बोला, अपनी बात पर कायम रहना। तुमने अब कोई गलती की तो शायद मैं भी तुम्हें ना बचा सकूं। हम मुसलमानों का अकीदा है कि मारने और बचाने वाली जात एक ही है। बेशक, लेकिन वो जात भी मेरिट पर फैसला करती है। पहली बार जानगरे ने बदले हुए लहजे में कहा। तुम मुसलमान शायद ये बात भूल गए हो। मैं शर्मिंदा हो गया था। वाकई हम मुसलमानों ने महज बातों ही को सब कुछ समझ लिया था और अमल करना भूल गए हैं। शायद यही वजह थी कि हम जिंदगी के हर शोबे में पीछे हैं। इल्म और अमल के तजाद ने हमें ज़बूहाली से दो चार कर दिया है।
चांदगरे चला गया। तकरीबन 2 घंटे बाद उबैद सलाह कमरे से निकला तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ जा रहा था। मुझे लगा कि उसने मेरी बात पर अमल नहीं किया था। इस कौंसल के 1, 2, 3 से मुंह मारी हो गई थी और शायद उसे सजा सुना दी गई थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। सिर्फ 15 दिन की सजाए कैद थे। 15 दिन की? मैं दंग रह गया। फिर फौरन उसकी बात समझ गया। तुम बाज नहीं आए? सजा तो मिलनी थी। मैंने सोचा कि दिल की दिल ही में क्यों रखी जाए, मोहलत तो मिल सकती थी ना। उसने शाने हिलाए। 1-2 दिन से क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क पड़ जाता है, मैंने मायूसी से कहा। एक उम्मीद तो नजर आई है क्या? उसने दिलचस्पी से पूछा। मैंने उस जानगरे की पेशकश से आगाह कर दिया। वो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, मैं जानगरे जैसे शख्स पर किसी सूरत एतबार नहीं कर सकता। एतबार तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा है कि वो भी फंसा हुआ है और उसे मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं उसे फायदा क्यों ना उठाऊं? कम अज कम इस मनहूस जगह से तो निकलें। उसने पुरख्याल नजरों से मुझे देखा। हमारे यहाँ एक कहावत है, शैतान भी कभी इंसान के काम आ जाता है। चांदगरे किसी शैतान से कम नहीं है, लेकिन इस वक्त वो हमारे काम आ रहा है। दलदल में गिरने वाला ये परवाह नहीं करता कि वो जिस चीज को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो दरअसल सांप की दुम है। हम बैक वक्त हंसे तो गार्ड्स ने हमें मशकूक नजरों से देखा। तुम क्यों हंस रहे हो? एक ने पूछा। दरअसल मेरी शादी होने वाली है तुम्हारी बहन से। नहीं, इससे मैं शादी करूंगा, तुम्हारा साला ये है। उबैसला ने दूसरे गार्ड की तरफ इशारा किया। दोनों ही के चेहरे सुर्ख हो गए थे। वो गुर्रा कर हमारी तरफ बढ़े थे कि दूसरे गार्ड ने उन्हें रोक दिया। होशियार रहो, हमें इनसे मोहतात रहने को कहा गया है, भौंकने दो इन्हें। लेकिन मुश्तिल गार्ड ने रास्ते में बदला यूं निकाल लिया जब उन्होंने बैक वक्त मुझे और उबैद सलाह को कमर पर ड्राइफलों के दस्ते मारे। कुर्तों पर लगने वाली इस चोट ने मुझे तड़पा दिया था। उबैद सलाह की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन हमने दर्द बर्दाश्त कर लिया। एक गार्ड गुर्राया, तेज चलो कुत्ते के बच्चों, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। खुशकिस्मती से हमारी तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं है, उबैद सलाह ने कहा तो तकलीफ के बावजूद मैं हंस पड़ा। अपनी कोठरी में पहुंचकर यह खुशगवार इंकशाफ हुआ कि गैर हाजिरी की बिना पर हमारा लंच वापस ले जाया गया था और अब हमें रात तक सबर करना पड़ेगा। ये सुनकर हमने बाजुबान शायर खुशी का इजहार किया था। उबैद सलाह का कसीदा अरबी में था जिसे नावाकफाने हाल तिलावत भी करार दे सकते थे। हालांकि अरबी में भी दीगर जुबानों की तरह इन अल्फाज की भरमार है जो किसी भी डिक्शनरी में शामिल नहीं किए जाते। पानी को हमने सबर के घूंट की तरह हल्क से उतार लिया। टियरडान हम पर इतना मेहरबान था कि 3 दिन के फाके के बाद भी उसने ख्याल रखा था कि हमारे मेदों में ज्यादा खुराक न जाने पाए, ताकि हम इन आवारिज से महफूज रहें जो ज्यादा खाने से पैदा होते हैं। क्या जानगरे? उबैद सलाह ने कहना चाहा तो मैंने होंठों पर उंगली रख दी। फिर तकरीबन उसके कान पर मुड़ रखकर कहा, यहाँ इस मौजू पर कोई बात नहीं करना। मुमकिन है हमारी बातें कहीं सुनी जा रही हों। उस वक्त ये सिर्फ ख्याल था जो बाद में हकीकत साबित हुआ था। रात के खाने के बाद जब मैं अपनी मुख्तसर सी कोठड़ी में चहल कदमी कर रहा था तब गार्ड ने दरवाजा खोला और मुझे बाहर आने का इशारा किया। क्यों, क्या बात है? ये मेरे सोने का वक्त है, मैंने एतराज किया। सोने के बच्चे, इंचार्ज तुम्हारा इंतजार कर रहा है अपने दफ्तर में, गार्ड ने कहा। इस वक्त तुम अपनी कब्र में भी सो रहे होते तो हम तुम्हें ले जाते। तुम्हारा ताल्लुक शायद गोरगनों के खानदान से है। मैंने बाहर आते हुए तबसरा किया। गार्ड ने मुझे खूनी नजरों से देखा। बकबक कर लो, चंद दिनों में तुम्हारी ये कैंची की तरह चलने वाली जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी जाएगी। मैं हंस दिया। ये फरबा अंदाम और गार्ड की तरह नजर आने वाला गार्ड खसूसियत से हमारा निशाना बनता था। इस बिना पर हमसे सबसे ज्यादा खार भी वो खाता था। इसके साथ मैं इंचार्ज यानी टियरटान के कमरे तक पहुंचा। वो रात के खाने से फारिग हुआ ही था। इसके सामने गंदे बर्तन पड़े थे, एक हाथ में जाम था। वो खासी देर से पी रहा था। इसकी आंखें सुर्ख हो जा रही थी। आओ मिस्टर यूसुफ, तलाफे तो आका, उसने गर्म जोशी से कहा। बैठो। मैं शुक्रिया अदा करके उसके सामने बैठ गया। उसके रवैये से मुझे खतरे की बू आ रही थी।